A few months from now, many students would be stressed about unfinished chapters, backlogs, and exams. And this could be me too. But without, but this year I want to be serious and I don't want to study randomly and hope for the best. So I planned my whole class 9th from all the way June to my final exams. And in this video, I'm sharing a roadmap, the mistakes I'm avoiding and the rules I'm following this year to score 90% while managing YouTube. Hey everyone, welcome back to my channel. For those who don't know me, I'm Shakti and this year I'm entering class 9th. So a new class means new books, harder subjects and a lot more responsibility with stress too. So instead of panicking at the very last moment of exams, I thought to sit down and plan my whole year with you. So just grab a notebook and a pen and just sit with me and I will take you along with me with this whole journey. So without any further ado, let's begin with this video. So before you leave this video, here is a gentle reminder that this is not gonna be a random roadmap video that you can find anywhere in YouTube. Like there are literally thousands of videos present in YouTube of class 9th roadmap, class 9 this, that. But this is gonna be different. This is a roadmap from a student's POV because in like this year I'm just also entering class 9 and this video is gonna be how a student should do, like plan his or her class 9th. And I'm that student and I'm trying. So this is my POV. So this is a little bit different from that all other roadmap videos. So stay with me till the very end. So now many people will arise with a question that why you are taking class 9 that seriously? Because it isn't a board class. It isn't that important. I know that. But I don't agree with them because I think that the habit we built in class 9th, that habit will affect our result which we will getting in class 10th, 11th and 12th and even in our future goals too. So I want to balance my YouTube and studies together and I know that very well that it wouldn't be happen if I don't. And before starting this video, here is a gentle reminder for you all that please I am requesting you just stay consistent and build discipline in between yourself because this isn't a simple class. This is gonna be a huge journey because आपने like I don't know कितने ने अभी syllabus देखा है but it's totally huge and उसका भी breakdown पूरा year का breakdown आपको आगे video में मिलेगा. So please just stay with me and promise me that you will be consistent, you will be disciplined with me till the very end of class 9th. So here are my goals for class 9th. I mainly have 5 goals, but you can add your personal goals here too. So my goals are achieving 90% or above in class 9th. I don't care if it's midterm, PTs or anything. Then balancing YouTube and studies without affecting my studies and all. Then third, being more disciplined and organized. Fourth, completing my syllabus until almost at least at end of November and staying consistent without depending on motivation. And I think that these goals might sound simple but achieving them are too difficult. You need daily efforts. So now I'm going to share with you my full year roadmap and I'm not gonna to go deep inside them that you will find in part 2. This is gonna be a overview. So let's so I will start from month wise, like June to July, then August to September, September to October to November and December to January. And in my part 2 you will get to know that each month how many parts of chapters you have to complete, how many tests you have to give, how many mock tests you have to solve and everything in the part 2. So let's start. So from June to July especially, this is the foundation phase and in this year my most of the focus I think I should keep only in building consistency, making my notes, clearing my backlogs and preparing for PT1 because मेरे को ऐसा लगता है कि just recently summer vacation हमारा over होता है and we can't
जस्ट लाइक ऐसे बोल देंगे तो ऐसे हम रैंडमली थोड़ी ना पढ़ने लग जाएंगे 2-4 घंटे एक दिन में. नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल इवन. And my goal is not perfection. My goal is to build a momentum this year. Like, I want to work seriously. And मैं ये नहीं बोल रही कि we have to study for many hours. And especially जैसे कि हमारा summer vacation खत्म होता है and we are like leaving our rest zone, our comfort zone to a working zone. So इसलिए थोड़ा सा difficult तो होगा. इसलिए जून जुलाई like I think we should go with light because पहले तो chapters स्कूल में होने चालू होंगे. So before that अगर हम थोड़ा चैप्टर खत्म भी करेंगे then it's fine. Now comes August to September. These 2 months are the main months for you all because these are the months where you will complete the majority of your syllabus because उसके बाद half yearly हो जाता है. Like almost September end तक half yearly हो जाते हैं most of the schools में. हमारे स्कूल में तो हो जाते हैं. So here we have to complete our majority of syllabus in these 2 months. Like, and you should make sure that you will not like just read the chapter. आपको उसे पूरे डीप से समझना पड़ेगा, की कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. एंड बाकी वो सब मैं आपको पार्ट 2 and 3 ऐसे जितने भी पार्ट्स बन सकते हैं उतने मैं बताऊंगी. एक वीडियो में नहीं हो पाएगा बिकॉज अदरवाइज दिस वीडियो विल गोना बी सो लॉन्ग. एंड यहाँ पे आपका मेन फोकस होना चाहिए आप कैसे जितना भी आप पढ़ रहे हो हाफ ईयरली के लिए उतने नोट्स कंप्लीट करोगे, बैकलॉग नहीं रहना चाहिए बिल्कुल. एंड कितने टेस्ट आप दोगे स्पेशली इस 2 महीने में बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट. एंड हाफ ईयर से पहले मेक श्योर हमेशा कर लेना. आई लाइक इधर यू आर इन क्लास 5, 6, 7, 8 एनीथिंग, टेस्ट खुद को जरूर करें. टेस्ट यू. नाउ कम्स अक्टूबर एंड नवंबर. आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट phase of my roadmap because my target is to like complete syllabus by November end because उसके बाद जो 3 तो नहीं almost like 2 महीने का टाइम ही रहता है. दिसंबर एंड जनवरी ही टाइम रहता है. फिर फेब मिडिल से ही हमारा मिड से ही स्टार्ट हो जाता है एनुअल एग्जाम्स. तो इसलिए दिस 2 months आई वांट टू कीप ओनली फॉर रिविजन बिकॉज इसमें आपको प्रैक्टिस नहीं करना है. यू हैव टू गिव योर टाइम इन रिविजन. जितना रिवाइज कर सकते हो चैप्टर्स को बिकॉज दिस ईयर पूरा एनसीईआरटी का पैटर्न बदल चुका है, एग्जाम्स पैटर्न्स इवन. तो वी शुड नॉट लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट मिनट सब कुछ पढ़ रहे हैं बिकॉज दिस नॉट गोना बी टू वर्क आउट, नॉट बिलीव मी. सो यू हैव टू कंप्लीट बिफोर हैंड एंड आई डोंट वांट टू लाइक कीप एवरीथिंग पाइल्ड अप एट द एंड एंड लास्ट मोमेंट में पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना चाहती. Next come December to January. So these months are only for revision, sample papers and mock tests. And this is the phase where you will get to know that कि मेरा ये जो रोड मैप है वो काम एक्चुअली में कर रहा है या नहीं कर रहा है. बिकॉज आपको अपनी रिविजन में ही पता चलेगा कि एंड उसी टाइम में भी आप अपनी वीक एरियाज में भी ध्यान दे सकते हो बिकॉज उसी से ही आपको पता लगेगा कि वो ईयर जो आपने इतनी मेहनत हार्ड वर्क जो भी किया है आप कहाँ पे स्टैंड आउट हो रहे हो. देन कम्स February to March month. So these are the only months. Giving you a disclaimer, these are not the months for late night studies, or ratta mar months. These are not. These are only for final revision, mock test. एंड इस टाइम में यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस. डोंट. वरना जितने भी आपने पूरे ईयर में किया है कुछ का फायदा नहीं है, कुछ का भी. एंड यू जस्ट हैव टू कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड डू मॉक टेस्ट डेली. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक्स. एंड स्पेशली यहाँ पे मैं सिर्फ 5 ही मिस्टेक्स को डिस्कस करूंगी बिकॉज दीज आर द मेजर वंस. बट मेरे चैनल में एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो अबाउट मिस्टेक्स अभी भी है. यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट. अगर होगा तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी. सो यू जस्ट गो एंड चेक इट आउट. क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए उसका लिए व्हाट आई एम स्पीकिंग एंड उसके लिए क्या सोल्यूशन है वो भी मैंने उस वीडियो में बता चुकी हूँ. एंड इन दिस आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस 5 मेजर मिस्टेक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद मिस्टेक नंबर 1. दैट इज वेटिंग फॉर मोटिवेशन बिफोर स्टडिंग. लाइक हमेशा हमको लगता है कि मोटिवेशन आएगा फिर वी विल स्टार्ट स्टडिंग. दिस डोंट हैपन. दिस नेवर हैपन्स.
and I am telling you with full on like trust that if you have कि नहीं आता कभी मोटिवेशन. इट्स जस्ट लाइक हमारे मन का एक भ्रम होता है कि मोटिवेशन आएगा देन यू विल स्टार्ट स्टडिंग. यू हैव योर गोल्स विद इन फ्रंट ऑफ एंड उससे ज्यादा मोटिवेशन और क्या ही है आपकी लाइफ में. मतलब आपका अगर गोल्स क्लियर होगा ना, यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन. नाउ मिस्टेक नंबर 3, थिंकिंग दैट रिविजन कैन बी डन लेटर. आई वांट टू से यू स्पेशली कि ये नहीं होता है. लाइक मतलब इफ आई से कि रिविजन ये एक ऐसा चीज है ना, ये आपको एक दे देगा कि आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हैं, आपने जो पढ़ा है कहाँ पे आप हो, कहाँ पे. तो इट्स लाइक अ चेक पॉइंट एंड आपको इस टाइम में यू विल गेट टू नो वेयर यू स्टैंड आउट. बहुत थोड़ी. नाउ मिस्टेक नंबर 3, ignoring revision and thinking that revision can be done later. Please, I'm requesting, don't do this mistake because revision बाद में नहीं हो सकता. Make sure हमेशा करना जब आप एक चैप्टर खत्म करते हो, जस्ट पहले तो उसकी रीड थ्रू कर लो पूरा चैप्टर और एक बार, एंड देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. We have ChatGPT, we have Gemini, we have lot of AI in this generation and आप उसको यूज करके ना बहुत कुछ कर सकते हो. यू कैन लिटरली क्रैक एंड डोंट थिंक दैट रिविजन कैन बी डन लेटर. एंड मैं आपको आने वाले पार्ट्स में ये भी शेयर कर दूंगी कि आप कैसे रिविजन करोगे, व्हाट यू हैव टू गो थ्रू, क्या क्या सर्च करने से आपको रिविजन, मैं कहाँ से सैम्पल पेपर्स यूज करती हूँ, सब कुछ आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विथ यू इन पार्ट 2 या 3 एंड कमिंग पार्ट जितने बनने वाले हैं. आई डोंट नो. सो या नाउ मिस्टेक नंबर 4, स्टडिंग बिफोर टेस्ट. ये चीज मैंने 8th में इतना किया है कि दिस इज द ह्यूज मिस्टेक. मैं अगर मेरा एक पॉइंट आउट करूंगी दैट इज स्टडिंग बिफोर द टेस्ट. बिकॉज ये बहुत बार होता है. एक तो मतलब हमारे जो स्कूल जब छुट्टी होता है, लाइक मतलब मैं घर पहुंचते मेरे को 3 बज जाता है, फिर बहुत हेक्टिक हो जाता है. फिर टेस्ट के एक दिन पहले, एक रात पहले ही मेरे को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ना बहुत सारे होमवर्क, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स ये सब दे देते हैं हमारे स्कूल वाले. दैट्स द प्रॉब्लम एंड उसी के लिए ही थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो जाता है. तो आई हैव टू, बट ऐसा नहीं करना है. मैं बी लाइक यू हैव टू स्टडी नॉट बिफोर द टेस्ट. आई डोंट नो आज क्या हो रहा है मेरे साथ. तो कैसे करोगे? तो आपको क्या करना है, आपको स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, ट्यूशन में जो पढ़ाया जा रहा है, या फिर आपने कोई बैच लिया, जिसमें भी जो भी पढ़ा है उसके साथ साथ चलना है. अगर आपका एक लेक्चर खत्म, अगर आपने यूट्यूब में सपोज एक लेक्चर देखा, वो खत्म हुआ, तो स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस. ChatGPT में चैप्टर दे देना, उसको बोलना कि मेरा MCQ टेस्ट लो, मेरा ये टेस्ट लो, वो टेस्ट लो. टेस्ट ही उसी से ही हो जाएगा. एंड आपको ज्यादा डीपली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं. आप छोटे मोटे टेस्ट से खुद को जब टेस्ट करके रिवाइज करके जाओगे भी टेस्ट में, दैट इज एनफ. Next comes mistake number 5, that is doing doom scrolling and saying that I don't have time, because time never waits for anyone. ये आपने सुना ही होगा and it's actually truth. time कभी वेट नहीं करता है. तो इसलिए you just have to don't spend your entire day scrolling only. आप उसमें इधर आप कोई हॉबीज, कोई स्किल अपने अंदर ले आ सकते हो, सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ यू विल स्पेंड टाइम ऑन स्क्रोलिंग, ये सिर्फ आपके ब्रेन को रॉट करेगा और कुछ नहीं करेगा. सो प्लीज ये जो स्क्रोलिंग टाइम है मिनिमाइज करो जितना कर सकते हो, एंड बाकी सारे कामों में ज्यादा ध्यान दो. इससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन ये भी अच्छा रहता है. इवन आई एम ट्राइंग टू अवॉइड ऑल दिस मिस्टेक्स, सो yeah, you too. So to avoid these mistakes, I have made few rules. So let's discuss each of them. First is never made any backlog after 2 days. मतलब suppose मेरा एक lecture है आज, and वो lecture में anyhow देख नहीं पाएंगे, तो 2 दिन I have time. जितना भी hectic हो, 2 दिन के अंदर मुझे वो देखना है. अगर 2 दिन के बाद 3 दिन भी हुआ, then आपको समझ जाना चाहिए कि बहुत बैकलॉग हो रखा है, बिकॉज वो 2 दिन में भी और 2 लेक्चर्स आ जाते हैं
I think you know it. Then is weekly self test. This one is personally my favorite. आपने मेरा आई थिंक एक व्लॉग में भी देखा होगा कि मैं खुद को टेस्ट कर रही थी चैट जीपीटी से. आई डोंट रिमेम्बर दैट व्लॉग नेम. तो मैं मेरा ये रूल है कि हर दिन, लाइक टुडे इज संडे, आई एम शूटिंग दिस वीडियो. तो आज भी मैंने सुबह जब मेरा मॉर्निंग स्टडी सेशन चल रहा था, ओके, तो मैं क्या करती हूँ होल वीक में जो भी जितना भी, या तो मैंने ट्यूशन से पढ़ा, या तो मैंने स्कूल से, या तो मैंने कोई लेक्चर देखा है उससे, कहीं से भी मैंने पढ़ा हो, मैं क्या करती हूँ संडे के दिन एक रखती हूँ. उसी दिन आई जस्ट टेस्ट माई सेल्फ. जितना भी मैंने पढ़ा है कवर अप, आप उसे चैट जीपीटी को दे दो, वो आपको रेडी टू गो टेस्ट बना के दे देगा सीरियसली. एंड मैं वैसा ही करती हूँ. जितना भी पार्ट में, पूरा चैप्टर का तो नहीं दे सकती बिकॉज एक पूरे वीक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक चैप्टर्स नहीं हो सकता ना ऐसा. तो जितना ही मैंने पढ़ा उतना ही उसको देती हूँ एंड वो उसमें से ही शेयर करके देता है. नाउ नोट्स आफ्टर एवरी चैप्टर. अब ये एक चीज है कि ये भी बैकलॉग की तरह है. मतलब आप अगर नोट्स को ऐसे रखते जाओगे वो भी पेंडिंग होते चलेगा, फिर लास्ट मोमेंट में आपको लिखना पड़ेगा. एंड मेरे बारे में अगर मैं बोलूँ, आई एम ए राइटिंग काइंड ऑफ पर्सन. मेरे को जब तक मैं लिखती नहीं तब तक मेरे को एक पॉइंट भी याद नहीं रहेगा. सो दैट्स द थिंग. जस्ट इग्नोर दिस थंडर. थोड़ा सा ज्यादा लाउड हो गया बट ओके. तो नोट्स, अगर एक चैप्टर खत्म हुआ फिर नोट्स बना लो प्लीज. आई एम टेलिंग बिकॉज आपने आई थिंक रिसेंट ही मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा कि मैं सेल चैप्टर का नोट्स बना रही थी. क्यों? बिकॉज मेरा वो भी बैकलॉग रह गया एंड अब तो वो मेरा कंप्लीट है. नाउ रिविजन एवरी वीक. तो एज आई टोल्ड, जैसे कि वीकली टेस्ट वैसे ही मैं एक टाइम रखती हूँ. सपोज मैं वीकली टेस्ट दे रही हूँ संडे के दिन, तो मेरा क्या रहता है कि सैटरडे या फ्राइडे के दिन मैं एक लाइक रिवीजन टेस्ट लेती हूँ. बिकॉज उससे क्या होता है कि नेक्स्ट डे जो मैं मतलब एक सेल्फ टेस्ट देने वाली हूँ उसमें मेरे को वो हेल्प करता है. मैं बस अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं ना उसको बस गो थ्रू कर देती हूँ एंड आई जस्ट रिवाइज लाइक. देन यूट्यूब और स्क्रोलिंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी गोल्स या फिर टू डू लिस्ट. मेरा भी ऐसा ही है. मैं वीक में एक ही बार वीडियो बनाती हूँ एंड दो वीक में 2 बार शॉर्ट्स डालती हूँ, या फिर कभी कभार एक. तो ऐसा ही रहता है. शॉर्ट्स तो मतलब दिन का सिर्फ 1 ही मिनट लेता है, तो दैट्स नॉट ह्यूज. बट वीडियो मैं सिर्फ संडे के दिन रखती हूँ. अगर आप क्या करते हो, इफ यू वांट टू लाइक थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहते हो तो क्या करो, आप पहले जो स्टडी गोल्स है वो क्लियर करो. ये भी एक तरह से आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं मेरे को पढ़ना है, फिर मैं आराम से स्क्रॉल करूंगी. तो ये जस्ट कीप इट एज अ लाइक अचीवमेंट एंड देन जस्ट स्टार्ट स्टडी. एंड हियर कम्स द लास्ट रूल, दैट इज कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन. ये चीज मैंने आपको मेरे वो मिस्टेक वाली वीडियो में भी बताया था, ये वाली वीडियो में भी बता रही हूँ. मतलब डोंट कंपेयर यूर्सेल्फ. देखो, कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा. वो अचीव करे उनके जगह में वो है एंड दे आर अचीविंग. यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर प्लेस एंड स्टार्ट अचीविंग ऑन योर ओन. एंड हमेशा हर दिन परफेक्ट जाएगा इसका कोई भी गारंटी नहीं होता है. बैड डेज कम, बैड मूड्स कम, बट दे गो. एंड आपको उसी में भी एटलीस्ट मैं बोलती हूँ प्लीज ट्राई टू स्टडी, बिकॉज जितना आप कंसिस्टेंटली पढ़ोगे उतना ही हेल्प होगा. ना कि सिर्फ अगर नहीं आज दिन अच्छा नहीं, आज मूड अच्छा नहीं, ऐसे बोलते रहोगे तो यू विल नेवर गोना बी लाइक अ परफेक्शनिस्ट. कोई भी परफेक्शनिस्ट तो नहीं बन सकता ऑफ कोर्स, बट एटलीस्ट कुछ तो अचीव कर पाओगे अगर आप उस टाइम को अगर पढ़ने में ही यूज करोगे. So here comes the ending of this video. So it's like a ending conclusion for you all, that making a roadmap is easy, but following it for the entire year is really difficult. So this video is not just about planning, but it's about like where this beautiful journey takes us, and it is the beginning of a very beautiful journey. So throughout my class night I will show you